हेलो दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड एक बुक का नाम है जो चार्ल्स डिकिंसन ने लिखी थी। उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी। आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये मूवीज़ की ही है। और अब जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ, आई हैव टू चेंज यू, ये भी डेविड कॉपरफील्ड ये बुक में से थोड़ा सा पैराग्राफ जो है वो लिया गया है। ये चार्ल्स डिकिंसन की पर्सनल हिस्ट्री में से है। उसमें सारी हिस्ट्री उसने पर्सनली बताई है। एंजॉय कीजिए और सुनिए ये स्टोरी। I Have a Change, adapted from David Copperfield by Charles Dickens. Ham carried me on his back and a small box of ours under his arm. Peggotty carried another small box of ours. We went past boat builders' yards, shipwrights' yards, shipbreakers' yards, smiths' forges, and a great litter of such places, until we came out upon the dull waste I had already seen at a distance, when Ham said, "Yon's our house, Master Davy." I looked in all directions, as far as I could stare over the wilderness and away at the river, but no house could I make out. There was a black barge, or some other kind of boat, not far off, high and dry on the ground, with an iron funnel sticking out of it for a chimney and smoking very cosily, but nothing else in the way of a habitation that was visible to me. "That's not it?" said I. "That ship-looking thing?" "That's it, Master Davy," returned Ham. If it had been Aladdin's palace, I suppose I could not have been more charmed with the idea of living in it. There was a delightful door cut in the side, and it was roofed in, and there were little windows in it. The wonderful charm of it was that it was a real boat which had no doubt been upon the water hundreds of times, and which had never been intended to be lived in on dry land. It was beautifully clean inside, and as tidy as possible. There was a table and a Dutch clock and a chest of drawers, and on the chest of drawers there was a tea tray. The tray was kept from tumbling down by a Bible, and the tray, if it had tumbled down, would have smashed a quantity of cups and saucers and a teapot that were grouped around the book. On the walls there were some framed coloured pictures. All this I saw in the first glance before I crossed the threshold, and then Peggotty opened a little door and showed me my bedroom. It was the completest and most desirable bedroom ever seen. In the stern of the vessel, with a little window where the rudder used to go through, a little looking glass, just the right height for me, nailed against the wall and framed with oyster shells, a little bed which there was just room enough to get into, and a nosegay of seaweed in a blue mug on the table. The walls were whitewashed as white as milk, and the patchwork counterpane made my eyes quite ache with its brightness. One thing I particularly noticed in this delightful house was the smell of fish. When I took out my pocket handkerchief to wipe my nose, I found it smelt exactly as if it had wrapped up a lobster. Peggotty informed me that her brothers sold lobsters, crabs, and crawfish. I afterwards found that a heap of these creatures were kept in a little wooden outhouse with the pots and kettles. We were welcomed by a woman in a white apron and a most beautiful little girl, or I thought her so, with a necklace of blue beads on. By and by, when we had dined in a sumptuous manner, a hairy man with a very good-natured face came home. As he called Peggotty lass and gave her a hearty smack on the cheek, I had no doubt that he was her brother, and so he turned out being presently introduced to me as Mr. Peggotty. "Glad to see you, sir," said Mr. Peggotty. "You'll find us rough, sir, but you'll find us ready." I thanked him and replied that I was sure I should be happy in such a delightful place. दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड जो है ये इनका जन्म होने के 6 महीने पहले ही इनके पिताजी का देहांत हो चुका होता है। और पेगटी जो इनकी माँ है वो दूसरे आदमी से, एडवर्ड मर्स्टोन से शादी कर लेती है। तो अब जो ये आप लोगों को ये जो लेसन और स्टोरी आई है, तो पेगटी चेंज के लिए डेविड को यहाँ वहाँ घुमाती है और बताती है कि लोगों को क्या क्या एडजस्ट करना पड़ता है
तो इसके बारे में ये स्टोरी है, तो हिंदी में सुनिए अब ये स्टोरी। डेविड कॉपरफील्ड नाम का जो बुक चार्ल्स डिकिंसन ने लिखा था उसमें से आई हैव अ चेंज, ये छोटा सा पैराग्राफ जो हमें स्टोरी के द्वारा दिया गया है, तो वो देखते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में एक आदमी डेविड को लेके, एक अपने हाथ में बैग है, पीछे से पेगटी है, उसके भी हाथ में बैग है, और ये लोग जा रहे हैं। तो जिस एरिया से जा रहे थे वहाँ पे आप बोट वगैरह देख सकते हैं। बोट बिल्डिंग चालू है, यार्ड चालू है जहाँ पे बोट्स बनाए, शिप बनाए जाते हैं। वहाँ पे कुछ लकड़ी से, डंडे से उनको अच्छे से एडजस्ट किया जाता है। ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंस था। तो यहाँ से वो लोग जा रहे हैं। ये एरिया इतना भी अच्छा नहीं है। तभी हैम उसको बोलता है कि आ गया तुम्हारा घर डेविड। तो डेविड जो है ये वहाँ यहाँ देख रहा है, उसे तो ऐसे घर के जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसको तो समंदर दिखाई दे रहा है, समंदर है, रिवर है, कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे तो उसको कुछ नहीं। और एक ब्लैक शी जो बोट के जैसे, शिप के जैसे कुछ तो दिख रही है वो, लेकिन वो ग्राउंड पे है, वो ड्राई है। अब और जो उसको एक चिमनी, गैस जो रहता है वो निकलने के लिए लगाई गई है। विंडोज़ है, सब है, डोर है अच्छे से। तो यही मेरा घर है, ये शिप के जैसे दिख रहा है वही। उसने, डेविड ने पूछा हैम से। तो हैम ने बोला यही है तुम्हारा, ये अलादीन के पैलेस के जैसे लग रहा है ना बिल्कुल। तो डेविड बहुत ही सरप्राइज़ हो कि ये कैसा घर होगा, इसके बारे में सोचने लगा। तो डोर था, डोर बहुत अच्छे से डेकोरेट करके, विंडोज़ थी वो भी अच्छे से निकाल करके, मतलब एक बोट को एक घर का शेप दिया गया था। और ये बोट जो है ये 100% श्योर ये बहुत बार ऑलरेडी वाटर में तैर चुकी है और अब ये कुछ काम की नहीं होंगी शायद से, इसलिए ये ड्राई लैंड पे लाके इसको घर का स्वरूप दिया गया है। वो बहुत अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा घर के जैसे बनाया गया था। एक टेबल रखा था, वहाँ पे ऊपर डक लोगों का जो क्लॉक रहता है, घड़ी रहती, वो थी। और एक टेबल था, कुछ ड्रॉवर्स थे, टेबल पे बाइबल, होली बाइबल का बुक था। और वहाँ पे पास में ही एक ट्रे रखा था जिसमें बहुत सारी कप और चाय पीने का जो ट्रे रहता है वो है। ऐसे होली बाइबल को रखा गया था कि अगर थोड़ा भी हिलेगा तो 100% जो भी कप और टी पॉट रखा था उसका बहुत सारे पीसेस गिरने वाले हैं, ऐसे लग रहा था। तो ये घर इतना बड़ा भी नहीं था, एक ही नज़र में पूरा घर मैंने देख लिया। पेगटी ने तभी एक छोटा सा डोर जो था उसका दरवाज़ा खोल दिया। ये मेरा बेडरूम है, ऐसे उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। वो मैं जो जैसे सोचता था मेरा छोटा सा बेडरूम वैसे ही था, बहुत नीटली, बहुत अच्छे से मेरी हाइट पहुँचे इतना एक मिरर वहाँ पे रखा गया था। मेरी हाइट पहुँचे उतने विंडो थी, विंडो में से बहुत अच्छी फ्रेश एयर आ रही थी। जो समंदर में जो प्लांट होते हैं, एक प्लांट एक ब्लू कलर के मग में रखे गए थे। मेरा छोटा सा जो बेड था वो भी बहुत अच्छे से, बेड के ऊपर जो भी बेड कवर डाल के रखा था, बेडशीट वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा था। वॉल जो थी वो बहुत वाइटिश मिल्क के जैसी थी। बेड कवर के ऊपर जो पैचेस थे ये मुझे बहुत ब्राइट लग रहे थे। मैं हर चीज़ को देख रहा था, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा जो स्मेल आ रही थी फिश की वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने एक रुमाल मेरे नाक पे लगा लिया। तो ये लैबस्टर जो फिश रहती है स्मेल शायद से उसकी होगी। तो मम्मी ऑलरेडी बोल रही थी कि उनकी जो ब्रदर है वो लैबस्टर, क्रैब्स एंड क्रॉफिश जो है इसको बेचते रहते हैं। और मुझे पता है कि जब समंदर से इनको पकड़ा जाता है तो इनको पॉट में और केटल्स में एक वुडन हाउस में रखा जाता है। तो डेफिनेटली ये जो है, ये मैं जिस घर में अब रहने वाला हूँ ये वही है। एक वाइट कलर की एप्रॉन पहन के और एक बहुत सुंदर सी लड़की जिसने ब्लू कलर का जो नेकलेस गले में पहना था वो भी समंदर से के शेल से बनाया गया था शायद से। वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल थी। इन लोगों ने मुझे वेलकम किया। फिर हम डाइनिंग टेबल पे जब खाना खाने के लिए बैठे तब एक हेयरी मैन वहाँ पे आया। उसका चेहरा और वो बहुत अच्छा नेचर वाला दिख रहा था। उसने पेगोटी को लैस करके बुलाया और उसके गालों को किस करके, तो डेफिनेटली वो ब्रदर ही
ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। और मिस जो पेगोटी जो है मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये मिस्टर पेगोटी मतलब उनके भाई है। और उनके भाई ने मुझे वेलकम करके मुझे बोला कि अब तो तुम्हारे को ये जो घर है ये थोड़ा सा रहने के लिए रफ़ लगेगा, लेकिन जैसे तुम यहाँ पे रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी डेविड ने उनको थैंक यू बोला और ये प्लेस बहुत अच्छी है ऐसे बोला। तो एंजॉय कीजिए और मेरी बहुत सारी स्टोरीज़ और मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।